بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. بإذن الله تعالى آج سورہ القاریہ جو قرآن شریف کی 101 نمبر کی سورہ ہے انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں کہ آنے والے اسماء اور افعال اور احرف. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں جو جتنے بھی کلمہ ہیں ان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، جس میں نمبر 1 ہے اسم، جس کو ہم لال کلر نیچے لائن لگاتے ہیں، اور دوسرا نمبر ہے فعل جس سے گرین کلر میں نیچے لائن ہوتی ہے، اور تیسرا ہے حرف جس کے نیچے بلو کلر ہوتا ہے، نیلا کلر ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج کی آیت. تو پہلی آیت نام جس کا القاریہ کا نام ہی سے شروع ہو رہی ہے اور ایک ہی کلمہ ہے اور وہ اسم ہے القاریہ. یہ ال لگا ہوا پہلے تو یہ معرفہ کی کیٹیگری میں چلا گیا، اسم معرفہ. اور پھر دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں آگے جو ہے تا مربوطہ ہے تو یہ مؤنث کا ہو گیا فیمینن، اور تا مربوطہ پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش ہے تو اس کی حالت مرفوع ہو گئی، اور سنگل ہے. اور یہ قارعون ایک مشتق ہے کس سے؟ قرع فعل ماضی، یقرأ فعل مضارع، اور قرعن اس کا مصدر ہوتا ہے، اس سے یہ اسم الفاعل ہے قارعون. اور قارعون سے یہ مؤنث کا صیغہ ہوا ہے قاریاتن. آپ کو پتا ہے کہ مذکر سے مؤنث یہ سمپل بنایا جاتا ہے کہ اس کے اینڈ کلمہ کے بعد میں تا مربوطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس سے جو پیچھے ہوتا ہے اس پہ پھر جبر لگا دی جاتی ہے. تو جیسے مسلمن مسلمتن، مؤمنن مؤمنتن، مدرسن مدرستن. اور اس کا معنی ہوتا ہے چوٹ لگانا یا کھڑکھڑانا، ایک کے اوپر دوسری چوٹ لگانا. یہ ایک نام ہے قیامت کے دن کا، جو بہت سے ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسے الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ. اس طرح کے جو نام دیے گئے ہیں اسی طرح یہ القاریہ بھی انہی میں سے قیامت کے نام میں سے ہے. جو نام سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنی جو ہولناکیاں بیان کر رہا ہے. یہ بھیانک نام ہے، ڈراؤنا نام جو ہے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، کیونکہ کیسے ہی ہم جاگ جائیں اور جو اللہ کے احکام ہے اس پہ عمل کرنے کی جو ہے عمل کرنے لگ جائیں. تو یہ پھر مبتدا بن جائے گا. اور اگلی آیت آ رہی ہے مل قاریہ. یہ ما جو ہے یہ اسم استفہام ہے، اور یہ واٹ کیا کے معنی میں آتا ہے. اور اسم استفہام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مبنی ہوتے ہیں. تو ان کا اعراب پھر محلن ہوتا ہے، یا تو وہ
मरफू होते हैं या फिर मंसूब होते हैं या फिर मजरूर होते हैं। और जितने भी इस्म इस्तिफ़हाम सवाल के अगर माने में आते हैं तो वो शुरू में, जुमले के शुरू में आना पसंद करते हैं, जुमले के शुरू में आते हैं। जैसे इंग्लिश में आता है व्हाट, व्हाट इज़ दिस, हाउ आर यू, इसी तरह अरबी में भी ये पहले आते हैं। लेकिन क्योंकि ये नकीरा होते हैं इसलिए यहाँ पे ये जो मा पहला आया है ये खबर मुक़द्दम हो गया, और अल-क़ारिया ये बाद में आया है। ये देखें कि मारिफ़ा है, अल लगा है, तो मरफ़ू हालत भी है इसकी, तो ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। तो मुब्तदा मुअख्खर अपने खबर मुक़द्दम से मिलके ये जुमला जुमला इस्मिया हो गया, और जुमला इस्मिया बन के ये अल-क़ारिया जो पहला मुब्तदा था उसके लिए खबर हो जाएँगे महल्लन मरफ़ू। ठीक? तो मल क़ारिया क्या है? वो चीज़ जो खड़खड़ा देने वाली है। अल्लाह से पनाह माँगते हैं, अल्लाह ताला हमें ऐसी होलनाक चीज़ों से बचाए। वमा अदराका मल क़ारिअह। वाव हर्फ़ है ये, और ये हर्फ़ इस्तिनाफ़, यानी जुमला नया शुरू हो रहा है, तो इसको हर्फ़ इस्तिनाफ़ कह सकते हैं, और मुस्तअनिफ़ा भी कह सकते हैं। उसके बाद में है मा, फिर मा जो है ये इसमें इस्तिफ़हाम सवाल के लिए आ रहा है, क्या के माने में। तो ये फिर यहाँ पे इसके बाद में अगर आप देखें कि जुमला फ़ेलिया आ रहा है तो ये मुब्तदा बन सकता है। तो ये मुब्तदा हो गया, खबर चाहिए, खबर आ रही है अदराका मल क़ारिअह, ये पूरा खबर हो जाना है। कैसे होगा? जैसे अदरा ये फ़िअल माज़ी है जिसमें दाल, रा, या इसके हुरूफ़ माद्दा हैं, रूट वर्ड हैं। दरा, यदरी, जानना, मालूम होना, और फिर ये इफ़आल के पैटर्न पे जाता है मज़ीद फ़ी में, तो ये फिर मुतअद्दी हो जाता है। अगर मुतअद्दी पहले मुतअद्दी हो खुलासे में, तो फिर 2 मफ़ूल इसको चाहिए, और अगर वो लाज़िम हो और फिर इस पैटर्न पे आए अफ़अला युफ़इलु इफ़आल के पैटर्न पे, तो 2 मफ़ूल भी चाहिए। तो इसको फिर यहाँ पे 2 मफ़ूल भी चाहिए, और इसका माना है बताना किसी को। तो ये है कि किसी को बताना और क्या बताना, ये दोनों मफ़ूल हो जाते हैं। और यहाँ पे जो अलिफ खड़ा देख रहे हैं ये यहाँ असल में या मकसूरा था, जिसको अलिफ में कर दिया क्योंकि इसके बाद में ज़मीर मुत्तसिल अटैच लगा हुआ है, ठीक? और ये होने की वजह से फिर ये अलिफ में चेंज हो जाता है, और अदरा में फ़ाइल मौजूद है, ठीक है ना? और फ़ाइल हुआ मौजूद है। तो मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुआ, और फिर का ज़मीर, और ज़मीर जितने भी होते हैं आपको पता है कि ये इसमें होते हैं, और इनका एराब ये भी मबनी होते हैं। फिर ये महल्लन मंसूब, ये मफ़ूल बिही है पहला अदरा का, और का मतलब तुम, तुम्हें क्या मालूम है? मल क़ारिया, तुम्हें क्या मालूम है कि मल क़ारिया क्या है? फिर मा जो है ये वही जो आयत नंबर 2 में था, मा ये खबर मुक़द्दम, और अल क़ारिया ये मुब्तदा मुअख्खर। तो क्या है अल क़ारिया? मुब्तदा और खबर मिलके ये जुमला इस्मिया हुआ, और जुमला इस्मिया ये सद्दा-मसद्दा मफ़ऊलैन हुआ, दूसरा सानी अदरा का।
ठीक। तो यानी तुझे क्या मालूम कि वो खड़खड़ाने वाली क्या है। और ये अल्लाह ताला सवाल कर रहा है हमसे, और ये सवाल इसलिए कर रहा है कि हम इसके बारे में गौर व फिक्र करें। आगे अल्लाह ताला खुद बता रहा है कि वो क्या है। यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस। यौम, ये ज़र्फ़ है। ये जो ज़र्फ़ होते हैं इनको मफ़ऊल फ़ीही भी कहते हैं, ठीक है? और मफ़ऊल फ़ीही ज़र्फ़ एक ही बात होती है, 2 तरह के होते हैं, ठीक? एक तो ज़माना के हिसाब से और एक जो है जगह के हिसाब से। इस्मु यानी ज़र्फ़ु मकान और ज़र्फ़ु ज़मान। और जब भी ज़र्फ़ आता है तो उसके बाद में चाहे मुफ़रद हो तो वो फिर मजरूर हो जाएगा, और अगर वो जुमला हो या कोई मबनी में हो तो फिर वो महल्लन मजरूर मुदाफ़ इलैह कहलाता है उसका। तो आगे आ रहा है यकूनु, ये फ़िल नाक़िस है काना यकूनु से, और इसका मतलब होता है होना। और इसको फ़िल नासिख़ भी कहते हैं। नासिख़ इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये चेंज कर देता है, कैंसल कर देता है किसको? मुब्तदा को और ख़बर। वो फिर मुब्तदा और ख़बर नहीं रहते हैं। उसका फिर ये काना के लिए इस्म और उसकी ख़बर बन जाते हैं। पहला सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का। तो ये जवाज़न है, इसमें इसका इस्म ज़ाहिर हो सकता है। और आगे ज़ाहिर आ रहा है अन्नासु, और अन्नास यानी इंसान, ये अल के साथ है, मारिफ़ा है। और आगे देखते हैं सीन पे पेश लगी हुई है तो ये मरफ़ू हालत है। तो ये इस्म हुआ क्योंकि काना का जो इस्म होता है वो मरफ़ू होता है और उसकी खबर वो मंसूब होती है। तो अब काना का इस्म आ गया, काना की खबर चाहिए, और काना की खबर जो होती है वो मंसूब हालत में होती है। यहाँ पे कोई वैसे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आगे आ रहा है का कल फराशिल मबसूस। तो ये का जो है ये हर्फ है, हर्फ जर। और हर्फ जर की खासियत है कि उसके बाद में कोई इस्म आता है और वो इस्म हालत मजरूर में होता है। तो ये अल के साथ है, मारिफा है, और फिर लास्ट में जो शीन है उस पे जेर है, कसरा है, तो ये मजरूर हालत है क्योंकि का हर्फ जर इसके साथ में लगा हुआ है। और अल फराश यानी तितलियां, परवाने, मच्छर, इसके माने हैं, यानी कि ये इस्म जिन्स यहाँ पे लिया गया है, पूरा जिन्स, जिनसी माना। और फिर अल मबसूस, ये भी अल है साथ में लगा हुआ, और लास्ट जो सा है लेटर उस पे कसरा है, मजरूर है। तो मजरूर है और मारिफा है अल फराश की तरह, तो ये सिफा बन जाती है अल फराश की। तो सिफा क्या होती है कि अपने मौसूफ को फॉलो करती है इस्म के चारों एतबार से। इस्म के चारों एतबार कौन से हैं? जैसे कि नंबर एक वो जिन्स यानी मुज़क्कर या मुअन्नस, और अदद में देख लें कि वाहिद, मुसन्ना और जमा, इसमें भी वो फॉलो करती है। वाहिद के लिए वाहिद होगी और जमा के लिए जमा होगी। और नकिरा और मारिफा में भी मारिफा होगा तो वो उसी तरह जो है सिफा जो है अपने मौसूफ को फॉलो करेगी। एराब में भी जैसे मजरूर आपको दिख रहा है, दोनों मजरूर हैं, तो इस तरह ये सिफा और मौसूफ हो जाएंगी। और ये मबसूस जो है ये इस्मुल मफऊल का सीगा है, बस्सा यबुस्सु, बस्सन से, ठीक है? और इसका माना होता है फैलना, बिखरना। तो यहाँ मबतूस यानी फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं।
यानी परवाने की तरह फैले हुए। तो ये जार और मजरूर मिलके ये मुताल्लिक हो जाते हैं, किसके मुताल्लिक? क्योंकि खबर मौजूद नहीं है यहाँ पे, उस खबर गैर मौजूद के मुताल्लिक हैं, और वो मुस्तक़र्रुन या साबितुन हो सकती है, उसके मुताल्लिक है। और ये फिर उसकी जगह होके ये फिर महल्लन क्या होंगे? मंसूब, और काना जो फ़ेल नाकिस था उसकी खबर है। जिस दिन इंसान बिखरे हुए परवाने की तरह हो जाएंगे। अल्लाह ताला हिफाजत करे हमारी। वतकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश। और यहाँ पे वाव जो है, वाव हर्फ आत्फ है ये। तो हम क्या करेंगे कि ये पूरा जो यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, ये पूरा जुमला हुआ ना, एक जुमला फेलिया। अभी हम इसको मुदाफ इले नहीं करते यौमा के लिए, ये अत्फ करके, यानी ये अत्फ हो जाएगा पिछले जुमले पे, तो इससे आने वाला जो आगे जुमला है वो मातूफ हो जाएगा, और यकून उन्नास कल फराशिल मबसूस ये मातूफ अलैह हो जाएगा इसका। और फिर मातूफ और मातूफ अलैह मिलके, ये दोनों मिलके फिर मजरूर हो जाएंगे मुदाफ इलैह महल्लन यौमा ज़र्फ के लिए। तो तकूनु यहाँ पे फेल, ये जो फेल है ये भी फेल जो है फेल नाकिस है। तो पहला यकूनु था मुज़क्कर वाहिद गायब का सीगा, अभी तकूनु है मुअन्नस गायब वाहिद का सीगा। क्यों आया है? क्योंकि इसके बाद में इसका जो इस्म है वो अलजिबालू है। अलजिबालू ये जमा मुकस्सर है, जबलुन से जिबालुन, तो जमा मुकस्सर के लिए फिर वाहिद का सीगा, वाहिद मुअन्नस का सीगा आता है। तो इसलिए ये जिबालु जो इसका इस्म हो गया। अब इसकी खबर चाहिए, तो खबर आ रही है कल इहलिल मंफूश। यहाँ भी जो ये का है हर्फ जार, और अल इहनी, अल इहनी अल के साथ में है तो ये मारिफा है, और फिर अल आखिर जो हर्फ है नून उस पे कसरा है, मजरूर। इहनुन बोलते हैं रंग बिरंगी रुई या रंग बिरंगी ऊन को, कलर की हुई होती है। तो रंग बिरंगी ऊन की तरह, जिबाल यानी पहाड़। अल मनफूश, तो यहाँ भी अल लगा है, और मनफूश शीन पे कसरा है, ये भी मजरूर है। तो ये इहनी की तरह ही है, तो ये उसकी सिफा हो जाएगी। आपको पता है कि सिफा अपने मौसूफ को फॉलो करती है इस्म के चारों एतबार से। तो इस तरह ये चारों एतबार से मिल रही है, फॉलो कर रही है। तो ये मौसूफ अपने सिफा से मिलके का हर्फ जर के लिए मजरूर हो जाएंगे, और फिर जार और मजरूर ये भी क्योंकि मुताल्लिक होते हैं किसी के, किसके मुताल्लिक हैं? क्योंकि खबर यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो मुस्तक़र्रुन या साबितुन हो सकती है उसके मुताल्लिक हैं। और फिर ये महल्लन मंसूब होके काना की खबर हो जाएंगे। ठीक। और काना फ़िल अपने इस्म और अपनी खबर से मिलके ये जुमला फ़िलिया मातूफ बन गया, और ये फिर पिछले जुमले पे मातूफ हो गया, और मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलके यौम ज़र्फ के लिए मुदाफ इले
महल्लन मजरूर हो गए, और यौमा ज़र्फ अपने मुदाफिले से मिलके ये क्या हुआ, ये भी मुताल्लिक होता है, क्योंकि पता है आपको कि जार मजरूर या जो ज़र्फ और मुदाफिले होते हैं वो दोनों ही जो है शिबु जुमला कहलाते हैं, और वो फिर मुताल्लिक होते हैं। तो ये किसके मुताल्लिक है, यहाँ एक फ़ेल महज़ूफ़ है जो उज़कुर हो सकता है, या अल्लाहु आलम और भी हो सकता है, यानी तू याद कर, वो दिन याद कर जिस दिन ये हाल होगा इंसानों का, वो कल फराश अल मबसूस की तरह बिखरे हुए होंगे, और उस दिन जो है जो पहाड़ हैं वो उनका हाल क्या होगा, वो बिखरे हुए होंगे, यानी कि उनको जो रंगीन ऊन या रुई है उसकी तरह उड़ जाएंगे। ठीक है ना। और मनफूश ये नफशा यनफुशु नफशन या नुफूशन से बनता है, और इसका माना है कि रुई या ऊन को धुनना यानी कूटना, ये भी इस्मुल मफूल का सीगा है। अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसी होलनाक चीज से, यानी कि हम पनाह मांगते हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे इसके जरिए, और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।